they are not present as individual atoms, rather they are present as molecules. The only elements which we find to be present as individual atoms are zero group elements, which are relatively non-reactive in nature. But most of the elements are present in their combined states. Why the elements are present in their combined state, or the atoms are present in their combined state? Because atoms individually have more energy. They are, rather we can say, they are unstable. For example, a fluorine is not stable because fluorine has 7 electrons in its outermost shell. So it will have a tendency to combine with some another element and gain inert gas configuration, and therefore decrease its energy. That means one indication that we get from here is that if you take the energy of individual atoms and see the energy of molecule, the energy of molecule is less when compared to combined energy of individual atoms. यदि आप एटम्स को लेंगे तो एटम्स की एनर्जी ज्यादा है when, जब उसकी तुलना हम करेंगे मॉलिक्यूल से. F2 की एनर्जी कम होगी, इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी. देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि फ्लोरीन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल when compared to two fluorine atoms. The two fluorine atoms combine together to form F2, and in this process there is loss of energy. How really that loss of energy will take place is that when a chemical bond is formed between fluorine and fluorine, obviously the system will release some amount of energy. Therefore, F2 molecule is more stable when compared to combined energy of fluorine and fluorine atoms. From here we get this answer कि क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं. केमिकल बॉन्ड बनते हैं जिससे कि एनर्जी थोड़ी कम हो जाए. नाउ आई विल ड्रॉ अ ग्राफ. You can write a definition also before that. What is chemical bond? What is chemical bond? Chemical bond is the union of two atoms. Or else you can write it. It is the force which involves union of two atoms. It is the force which involves union of two atoms to form a molecule. To form a molecule. The energy of, next line लिखना, the energy of molecule is less when compared to energy of individual atoms when compared to combined energy of individual atoms. When compared to combined energy of individual atoms. Next line. Therefore, in formation of chemical bond,
the energy of system decreases. Hence, molecule is thermodynamically more stable. Molecule is thermodynamically more stable. Now we shall discuss a graph. See, one coordinate indicates distance from the nucleus and the other coordinate indicates the distance from the nucleus. थोड़ा सा बदलेंगे, distance between the nucleus, distance between the nucleus. Now what does that distance between the nucleus means? And this is the energy of the overall system. Now see, when two atoms approaches together, जब दो एटम आपस में अप्रोच करते हैं, तो there are two set of forces which will operate between the atoms. जब दो एटम आपस में एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो इस दौरान दो सेट ऑफ फोर्सेस काम करते हैं, एक रिपल्शन फोर्सेस और दूसरे अट्रैक्शन फोर्सेस. Now what are those repulsive forces and what are those attraction forces? See, if this is a fluorine atom, this is another fluorine atom, there are nine electrons total present, 2 in 7 in ultimate and 2 in penultimate shells. When these two fluorine atoms approaches each other, जब ये दो fluorine atom एक दूसरे के पास आ रहे हैं, obviously there is going to be repulsion between the nucleus of one fluorine with nucleus of another fluorine. Also, the nucleus has 9 protons. This nucleus will also have 9 protons. Nucleus repulsion होगा because positive charge repels positive charge. Also, there will be repulsion between electrons and electrons. Electrons और electrons के बीच में भी repulsion होगा. Now, there is repulsion between the electrons, there is repulsion between the nucleus and nucleus. So they are repulsive forces. Repulsive forces between nucleus, between electrons and electrons. Obviously, electrons and electrons of two different atoms. Now, there are certain attraction forces as well. What are these attraction forces? Attraction force होगा between nucleus of this atom and electrons of this atom and between nucleus of this atom and electrons of
this atom between nucleus of first atom with electrons of another atom and vice versa. एटम ए के इलेक्ट्रॉन, एटम ए का न्यूक्लियस एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है और एटम बी का न्यूक्लियस एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है. Therefore, these two forces are there in operation. अब यदि अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा डोमिनेटिंग है तो बॉन्ड बनेगा, और अगर रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा डोमिनेटिंग है तो बॉन्ड नहीं बनेगा. इसका मतलब जब दो एटम पास पास आ रहे हैं तो वी हैव टू सी दीज टू काइंड ऑफ फोर्सेस. जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है. यदि रिपल्शन, नेट रिपल्शन ज्यादा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी. दो एटम पास पास आ रहे हैं इसलिए जिससे कि सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो, ना कि इंक्रीज हो. यदि एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो अनस्टेबिलिटी आएगी. देयरफॉर द नेट forces of attraction should be greater than net forces of repulsion in order to form a chemical bond between two atoms. Net attraction forces should be greater than net repulsive forces in order to form a chemical bond. If इसका उल्टा हो रहा है, रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा है अट्रैक्शन फोर्सेस से, तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि उस केस में दो इंडिविजुअल एटम्स की जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी जब बॉन्ड बना हुआ है उस समय. मान लो मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूं, एक की एनर्जी 10 किलो जूल है, दूसरे की एनर्जी 10 किलो जूल है. तो जब बॉन्ड बने तो वो स्टेबिलिटी तभी हो सकती है जब मॉलिक्यूल की एनर्जी 20 से कम. यदि मॉलिक्यूल की एनर्जी इससे ज्यादा आ रही है तो ऐसा एसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि इस एसोसिएशन में स्टेबिलिटी नहीं आई है, अनस्टेबिलिटी आई है. नाउ लेट अस सी दिस थिंग ऑन दिस ग्राफ. व्हेन टू एटम्स अप्रोचेस टुगेदर, द डिस्टेंस between the nucleus, so at some distance, some infinite distance से between the two atoms, एक समय आएगा जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और ऑब्वियसली वो एक दूसरे के पास अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं व्हेन कंपेयर्ड टू द रिपल्शन फोर्सेस. क्योंकि यदि शुरुआती रूप में ही रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा रहेंगे तो वो एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, वहां पर रिपल्शन हो जाएगा, किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनेगा. ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ. आप चाहें तो इसको अपने जीवन में भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हम किसी से दोस्ती करने के लिए जा रहे हैं और यदि शुरुआती रूप में ही रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली दोस्ती बनने से पहले ही टूट जाती है. नाउ जब दोस्ती थोड़ी शुरू हुई, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन शुरू हुआ, तो एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एक समय आएगा जबकि एनर्जी मिनिमम हो जाएगी. एक ऐसा समय आएगा जबकि एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो जाएगी और फिर यदि इसके बाद भी एटम पास पास आते रहे तो एनर्जी बढ़ने लग जाएगी और एक समय आएगा जबकि बॉन्ड टूट जाएगा.
मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं, समझे आप। ये एटम्स एक दूसरे से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये हमने यहाँ पे एनर्जी जीरो मान ली है। यहाँ पर जीरो इसलिए मान लिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आई टॉट यू दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और ऑफ ए एटम, देयरफॉर हम इसकी एनर्जी को क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। तो जब ये पास पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, और एनर्जी रिलीज होगी तो मैं जीरो से उसको नीचे ले जा रहा हूं। ये जीरो एक आइडियल सिचुएशन है जो मैंने मान लिया अपनी तरफ से, ऑल्दो उनकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, बट चूंकि मैं एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं नाप सकता हूं इसलिए मैंने जीरो एक इंडिकेटर मान लिया है, उसके नीचे ही एनर्जी जानी। तो ये एनर्जी उनके इंडिविजुअल एटम्स के, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है इसलिए एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज, और वो पास आएंगे और वो पास आएंगे। व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। और पास आएंगे और पास आएंगे और पास आएंगे, और इस दौरान अट्रैक्शन फोर्सेस और डोमिनेट हो रहे हैं। मतलब इधर तक मैं ये बोल सकता हूं, इस पॉइंट तक, इधर तक डिस्टेंस जब कवर हो रही थी, मतलब दो एटम्स पास पास आ रहे थे, इस समय दोनों सेट ऑफ फोर्सेस बढ़ रहे होंगे। ऑब्वियसली जब दो एटम पास पास आएंगे तो दोनों ही टाइप के फोर्सेस बढ़ेंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे और रिपल्शन फोर्सेस भी बढ़ेंगे। क्योंकि ये रिपल्शन है तो डिस्टेंस के साथ में रिपल्शंस ऑब्वियसली बढ़ेंगे, अट्रैक्शन भी बढ़ रहे हैं, बट एक समय तक अट्रैक्शन ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू द रिपल्शन। मतलब अट्रैक्शन ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रहा था रिपल्शन की अपेक्षाकृत। मान लो थोड़ा सा आगे बढ़े, अट्रैक्शन बढ़ा 4 रुपए, रिपल्शन बढ़ा 2 रुपए, तो नेट 2 रुपए का फायदा। और थोड़ा सा पास आए, अट्रैक्शन बढ़ा 10 रुपए, रिपल्शन बढ़ा से 5 रुपए, तो फायदा 5 रुपए का। और थोड़ा पास आए, अट्रैक्शन 20 रुपए, रिपल्शन 10 रुपए, फायदा 10 रुपए का। हर बार फायदा बढ़ता जा रहा है। और आप नोट करें, हर बार रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रिपल्शंस इतने नहीं बढ़ रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हैं जिस प्रोपोर्शन में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। पर कब तक? इस हद तक। इसके बाद में एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पर अभी भी एक बात आप बात याद रखें, इस समय भी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, जब ये से इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू द रिपल्शन। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब भी ज्यादा है, अब भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, बट एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उस टाइप का फायदा नहीं है, अब ये फायदा थोड़ा कम होता जा रहा है। मतलब डिफरेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डिक्रीजिंग, वो घट रहा है। और पास आते गए और पास आते गए और पास आते गए, ये डिफरेंस और कम होता जाएगा। एक समय आएगा जब ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ना फायदा ना नुकसान। उस समय एनर्जी वही हो जाएगी जो एनर्जी इंडिविजुअल एटम्स की रही होगी। उस समय एनर्जी वही हो जाएगी जो इंडिविजुअल एटम्स की रही होगी, पर इसके बाद यदि थोड़ा सा पास और आया तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड टूट जाएगा। एनर्जेटिकली या थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल हो जाएगा ऐसे बॉन्ड का बनना। इस ग्राफ से एक बात समझ में आती है कि दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं और मॉलिक्यूलर रूप में वो एग्जिस्ट करते हैं,
in order to get themselves stabilized. But there will be some amount of bond length, and that bond length will be that length at which the attraction forces और repulsion forces का डिस्टेंस का डिफरेंस मैक्सिमम हो. ऑब्वियसली कॉमन सेंस से आप सोच सकते हैं यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, रिपल्शन फोर्सेस कम है, अन्यथा बॉन्ड बनता ही नहीं. तो मैक्सिमम टाइम यू विल फाइंड दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस यहां से इंडिकेट हो रही है और एनर्जी का लेवल इधर आ जाएगा. दो एटम्स की यदि इंडिविजुअल एनर्जी देखो तो वो एनर्जी का लेवल ये जीरो है, जो मैंने हाइपोथेटिकल जीरो माना है क्योंकि मैं एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं नाप सकता. कम से कम मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी गिर गई है, इतना डिफरेंस है, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी. This is the amount of energy released while formation of the chemical bond. So this will be called as bond energy. इस एनर्जी को मैं बॉन्ड एनर्जी बोल दूंगा. This is the amount of energy released when the chemical bond is formed. या this much amount of energy shall be provided to a molecule in order to break the chemical bond. So this is about this graph. You can note down the graph and write. बचे बाकी 6 लेटर्स में से और कितने लेटर लेने हैं तुम्हें? 3 और 4 लेने हैं ना, तो 6 बाकी y को छोड़ के बाकी उसमें से 3 और लेने, तो पहले ले लो 6 3 3 हो गए 4 लेटर. एक तो y और 3 यहां से आ गए, तो 4 लेटर. उसको कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे? 4 फैक्टोरियल वे में, क्योंकि चारों डिस्टिंक्ट हैं. अब 6 डिवाइड कर दो. The attraction is inversely proportional to energy. As you know that more the energy, less the stability. It is not bond energy actually, it is energy of system. So obviously don't get confused by that, because bond energy जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा stability होगी. तो यदि आपको इस चीज़ से confusion होता है तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, this is energy of molecule or energy of system, that you have to understand very clearly. This is energy of molecule, it is not bond energy, because if it is bond energy तो इसका मतलब तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज. तो यदि एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गई तो इसका मतलब तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. सो मोर द बॉन्ड एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. एक्चुअली बेटा बॉन्ड एनर्जी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम जीवन में देखते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मान लो रामू है, और रामू से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है. रामू से दोस्ती करने में मैंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है. हम लोग 4 साल तक साथ रहे, हमने एक दूसरे के लिए काफी कुछ किया, तो ऑब्वियसली हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होगी. इस दोस्ती को करने में हमारी बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई. एक दूसरे के बुरे वक्त में हम एक दूसरे काम आते रहे. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन रिलीज्ड, अ लॉट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड. सो द स्टेबिलिटी ऑफ दिस दोस्ती विल बी मोर. इसी प्रकार एटम्स के बीच में है, जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे, यदि इस दौरान एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है तो ऑब्वियस सी बात है जब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जाओगे तो वो इसकी कीमत वसूलेगा. वो बोलेगा लाओ इतनी एनर्जी दो और बॉन्ड तोड़ लो. हमने इस बॉन्ड को बनाने में पूरे 100 रुपए खर्च किए हैं, तुम लाओ 100 का नोट दो और बॉन्ड को तोड़ लो. सो द मोर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन, मैंने इस बॉन्ड को बनाने में 1000 का नोट खर्च किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में इस बॉन्ड को तोड़ने में लास्ट वाले बॉन्ड से 10 गुना ज्यादा एनर्जी लग जाएगी. मतलब स्टेबिलिटी कब दो लोगों के बीच ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली तब ज्यादा रहेगी जबकि उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हैवियर रहा हो. यहां पर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है ये. दिस इज नॉट बॉन्ड एनर्जी. रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज मोर द बॉन्ड एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम की, उतना ही सिस्टम में लेस एनर्जी होगी. और स्टेबिलिटी ऑब्वियसली यू नो दैट मोर द अट्रैक्शन मोर द स्टेबिलिटी. जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतनी ही ज्यादा स्थिरता होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. नाउ वी शैल बिगिन फ्रॉम अ न्यूअर थिंग, दैट इज
लुईस लेटर में से 2 लेटर सेलेक्ट करो। ऑक्टेट अब कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे? रूल. चारों के चारों को अरेंज कर दो, 4 जगहों में 4 फैक्टोरियल। What does Lewis octet rule says? और इतना है कि लास्ट लाइन It says that in order to acquire stability, each individual atom tries to complete its क्या रहा है बताओ, कैसे करेंगे? octet, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? tries to complete its octet except hydrogen, which tries to complete its duplet, DUPLET, which tries to complete its duplet. You know that hydrogen 1s1, एक ही शेल है हाइड्रोजन के पास में और उसके अंदर एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है. Maximum number of electron that can be accommodated in an orbital are only 2. Therefore, there is only vacancy for one more electron, no further vacancy. After gaining one more electron, it will acquire a noble gas configuration, that is of helium, and it will become stable. Therefore, hydrogen has a tendency to complete its duplet. हाइड्रोजन में टेंडेंसी होती है अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने की, जबकि बाकी एटम्स में टेंडेंसी होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. So Lewis octet rule is the individual atoms have a tendency to complete their octet except hydrogen, which has a tendency to complete its duplet. Now, why do they have a tendency to complete its octet? Because by completing the octet, they will acquire a noble gas configuration. By completing the octet, the atoms acquires noble gas configuration. The atoms will acquire noble gas configuration and gain stability. Noble gas configuration and gain stability. दूसरे की भी दुर्गति मैं इतने ही तरीके से कर सकता हूँ, किसी भी डब्बे में जहाँ जाऊँ वहाँ पटक सकता हूँ. Now see, दूसरे को भी 3 तरीके से पटक सकता हूँ. there is lot being spoken about this Lewis octet rule. जॉब को मैं कितने तरीके The reality is that Lewis octet rule applies only on second period. सिर्फ सेकंड पीरियड पे लगता है और सेकंड पीरियड के भी सिर्फ 4 एलिमेंट हैं जो लुईस ऑक्टेट रूल को जनरली अपने कंपाउंड बनाते हुए फॉलो करते हैं. नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 4 एलिमेंट. एंड देयर हैज बीन लॉट स्पोकन अबाउट द लुईस ऑक्टेट रूल. एक्चुअली लुईस ऑक्टेट रूल इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े उसके एक्सेप्शंस हैं. Lewis octet rule is applicable while forming the molecules only on 4 atoms. There are a lot of exceptions which are present for Lewis octet rule. मतलब ऐसे कई एलिमेंट या कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिन कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी में पाया गया है या जिन कंपाउंड्स को स्टेबल फॉर्म में पाया गया है, इसके बावजूद कि वो कंपाउंड लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते. अब देखो बताओ इस Now, if you have written that Lewis octet rule, you can write exceptions of Lewis octet rule. इसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं? Exception, 2 तरीके से. ऑड नंबर बनाना है मतलब ये exceptions नंबर ऑड करना है. of Lewis octet rule. There are lot of examples where Lewis octet rule is not followed. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे Lewis octet rule फॉलो नहीं होता है. जैसे कि मैं इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? इनकम्प्लीट देखो 0 नहीं आ सकता यहाँ पर और जो यहाँ आ गया ऑक्टेट वो नहीं आएगा. molecules. 0 नहीं आएगा और इसमें से कोई एक तो यहाँ आएगा. क्यों नहीं? एक बार They have their existence in nature. For example, let us take case of BF3. यहाँ आया वो और जो यहाँ और 0. Let us take case of BF3. बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, कोई भी आ जाएगा. 2s2, 2p1. अरे 3 तरीके हैं. 3 आ चुका है क्या होता है? 3 तरीके हैं. देखो यहाँ पर 2 electrons
in 1s, और इसको फिल कर दिया, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी 2 electrons in 2s, को मत रखना, मतलब इन दो जगहों पे दो नंबर आ चुके हैं, and 1 electron in 2p. Now how BF3 is formed? We will keep on discussing this thing in the later part of the chapter as well. अभी मैं आपको just एक इंडिकेशन दे रहा हूं. जब 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे बोरॉन के साथ में, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल will take part in formation of bond. So these 2 electrons will not be available for bonding because they are not present in outermost shell, they are present in inner shell. If you draw this in shell 2, 3 like this, so these 3 electrons will take part in bonding. Now when 3 fluorine comes, one of the electron will excite to this position, but it requires energy actually. मतलब you cannot excite the electron, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप इलेक्ट्रॉन को बस वो फ्लोरीन को देखें और चल के ऊपर चला जाए और उसको कोई एनर्जी ना लगे. ऑब्वियसली आप यदि ऊपर की साइड में इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो, यू नो दैट एनर्जी ऑफ 2p इज मोर देन व्हेन कंपेयर्ड टू द 2s, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से मना कर देगा. इसके बावजूद ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है. तो ये खर्चा है छोटा मोटा, इधर से इधर जाने का 2 रुपए खर्चा है, पर जब बॉन्ड बनेगा तो 10-10 के 3 नोट बाहर आएंगे. देयरफॉर वो सोचेगा चलो यार 2 रुपए खर्च कर लेते हैं, इधर से इधर भेज देते हैं, बाद में कमाई भी बढ़ी है. तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर आ जाएगा. यदि मान लो ऐसा नहीं होता, खर्चा बड़ा होता, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फॉर्म BF5 और आप ये सोचोगे इस वाले इलेक्ट्रॉन को उछाल के मैं इधर ले आऊं, कम से कम एक और इलेक्ट्रॉन ऊपर ले आता हूं, पर नीचे वाली शेल से ऊपर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन लाने में खर्चा बड़ा हो जाएगा और जो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा. तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्यक्रम नहीं होने वाला. नाउ 3 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो यहां एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा. ये फ्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये फ्लोरीन इधर और ये फ्लोरीन इधर. तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कुछ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा. बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बॉन्डिंग में चले गए. फ्लोरीन के पास 7 थे, 7 बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग में गया. इधर भी इलेक्ट्रॉन्स सब दूर एक सी स्थिति है. अब these electrons are being shared between fluorine and boron. This is a covalent bond. In the later part of chapter we will discuss what is covalent bond. Covalent bond ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है 2 एटम्स के बीच में. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी हैं और बोरॉन के भी हैं. ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी हैं और ब्रोमीन के भी, बोरॉन के भी हैं. ये दोनों लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. तो क्या होता है, अब यदि मैं बोरॉन में देखूं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 2 ये, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स. लुईस ऑक्टेट रूल बोलता है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, बट BF3 हैज बीन फाउंड टू बी स्टेबल इन नेचर. और यदि वो मिल रहा है तो इसका एक सिंपल मतलब ये है कि लुईस ऑक्टेट रूल यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा. इट इज नॉट लाइक दैट एवरी एलिमेंट विल ट्राई टू डू द सेम. देयरफॉर the Lewis octet rule may not be able to explain the stability of BF3. You can also take case of BeCl2. This has been found to be stable in nature. और BeCl2 में 4 इलेक्ट्रॉन.
those elements which have less electrons in their outermost shell, even they have been found to be stable in their molecular form. Lewis octet rule does not explain their stability. Exceptions don't end here. This is just the beginning of exceptions. Now, you note it down.